So now what we'll do, we'll understand device forensics part 2. We're going to create a virtual device. We're going to copy some files in it, and then we are going to analyze device data using WinHex editor. Okay, clear? Then what you can do is, this will be for the demonstration session. Later, what you can do is, you can make hex image of any storage device. Okay, it could be your Android device, it could be any mobile device, etc. Okay, it could be pen drives or any of the storage device. You can make hexadecimal image of that device, and with WinHex you can regenerate device files and folders. You can regenerate files. Okay, so it's like a very important forensics tool जो कि WinHex आप आज यूज करेंगे. Okay, so let's get started with the demonstration. For this demonstration you need to download tool, and this is WinHex editor. Let me just guide you where this tool is available. You can browse to Google. Okay, we'll browse to Google and we will simply type in WinHex download. Okay, and from the website xways.net you can download WinHex editor. Okay, this tool is one of the most important computer forensics and data recovery tool. Clear? And you can download it freely. Now you can click on the download link here, and in case if you want to understand WinHex more better, you can use the user manual here. Okay, I have so now on my machine I have the WinHex installed. So we can go to WinHex here. You can right click and run WinHex as an administrator. Okay. WinHex is a forensics tool. It is an open source tool. It is freely available, so you can easily use it. Okay. And whatever upgrades are done for this particular software, you can easily download it from internet. Okay. There are many other tools like which FBI use. Okay, अलग-अलग individual tools हैं, but they are like heavy and commercial tools. So WinHex possess all the power, and you can use it in your forensics part. Okay, now let's see. So I have some images here. So once we'll open, the WinHex will look somewhat like this. Okay, so before this I would like to create some virtual devices. I would like to add some files in it, and then we are going to analyze data. Okay, so let's just do that. So here on my machine, let's say we have a directory known as ethical hacking directory, ethical hacking training. Let's say within this ethical hacking training I have a PNG file, something like day 2 notes. I have some I have some executables as well. Okay, and so I would like to add these files. Okay, अगर हमें चाहिए कुछ हम म्यूज़िक फाइल्स भी हम ऐड कर लें इसमें, तो लेट्स से कोई शॉर्ट छोटी कोई MP4 फाइल है तो 68 MB is like big. Let's go to music. If I have some music files here. Okay, I have some music files here around 5 minutes कुछ MB की होंगी. तो लेट्स से मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, इन फाइल्स को हम एक वर्चुअल डिवाइस के अंदर ऐड करेंगे और फिर उस डिवाइस को हम
एनालाइज करेंगे WinHex एडिटर से. ओके, लेट्स डू दैट. सो सिंस Linux gives us power to create virtual devices, otherwise DD कमांड आप विंडोज़ के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, फ्रीली अवेलेबल है वो भी. बट एट द मोमेंट सिंस आई डोंट हैव DD इंस्टॉल्ड, सो आई एम प्रेफरिंग Linux. विंडोज़ के लिए भी अवेलेबल है, बट बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होते हैं. लिनक्स क्योंकि सेंट्रल रिपोजिटरी है, तो लिनक्स रिपोजिटरी से पैकेजेस को डाउनलोड करना और सॉफ्टवेयर को यूज़ करना इज़ लाइक वेरी इजी. और जितने भी एनालिसिस टूल्स हैं ये सब जनरली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं. DD कमांड इज़ बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल, सो वी प्रेफर लिनक्स. ओके, बिकॉज हमें बार बार इंस्टॉलेशन अलग अलग सॉफ्टवेयर का नहीं करना पड़ता. यस, विंडोज बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड नहीं करता, बट अदरवाइज इफ यू वांट टू डाउनलोड देन सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड फ्री. ओके, नाउ लेट्स से what am I going to do? Let's say I'm going to make a directory ethical first. Ethical first. Okay, and within this directory, let me just first increase the size a bit as well so that you guys can see that properly. Okay, now so I've made a directory known as ethical, and I'm going to mount my ethical hacking training into this directory. Okay, so that we can access those files and we can create the images as well. So I'm going to use mount command. Partition type will be server message block file system. SMBFS stands for server message block file system. जितने भी network based mounting होती है वो SMBFS file system use हो के की जाती है. Then what we can do, we can go to 192.168. Let me just check the IP address of my Windows machine so that I can mount it. So IP address of my Windows machine is ipconfig pipe more. On my network connection 6, my IP address is 1.3. Okay, so let me just go to here 1.3, and the share is /ehack. Okay, I'm going to mount this ehack directory into ethical. Okay, and I'm going to provide my options like username is equal to Devanshu. Okay, I have to specify password. Password is ABCDE. No route to host. Okay, so I would just need to check whether I'm connected with internet or not. ifconfig. Okay, and actually at the moment I'm not connected to my Hackveda internet connection, so let me just connect back to Hackveda first so that I'll be able to mount. We are connected with Hackveda, and in order to get the fresh IP I can use this command dhclient eth0. So I'm requesting a new IP address from my current gateway or my DHCP server, and this DHCP server is going to allot me a new IP address on my current domain, and the new IP address which is allotted to me is 1.19 from the DHCP server 1.1. DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. Okay, so we use DHCP in the network in order to allot IP addresses. Is that clear? So now let's say, so now I'm going to mount -t SMBFS 192.168.1.3/ehack in the ethical hacking directory, and I'm going to provide some options, that is username is Devanshu and password is ABCDE, and now we have been mounted.
Okay, so let's change the directory to ethical, and within this ethical hacking directory you can see that we have some files here. Okay, so let me just do this. So I'll be doing things from my backtrack machine, but you will be able to view the changes on your Windows machine as well. Okay, clear? Now let's see. So now what we will be doing, let's just do the following. Okay, so we are into this directory. Now what am I going to do? I'm going to create a new device. Let's use dd. Input file will be /dv/0, which means we are going to create a device filled with zeros. Okay, name of the file will be, let's say, my pd.img. .img stands for image. Okay, हार्ड डिस्क की जितने भी हेक्स इमेजेस आप तैयार करते हैं उनका जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन होता है वो .img होता है. ठीक है, clear? So we are going to create a device with the name pd.img, which means let's say this is going to be an image of a pen drive. Okay, हम assume कर रहे हैं अभी. ठीक है, बाद में जब हम images बनाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा अभी कि हम पेन ड्राइव की इमेज कैसे बना सकते हैं. ठीक है, now let's say the block size will be 512 bytes and okay, we'll have a count of around, let's say हम कितने की बनाते हैं, 10 MB की बनाते हैं. ठीक है, या कितना है आपके पास, 5 MB का वो है, कुछ KB की फाइल्स हैं, कुछ इमेजेस हैं. ठीक है, लेट्स से 15 MB की हम फाइल बनाएंगे. ओके, तो 15 MB की फाइल बनाने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स चाहिए? सबसे पहले तो हम 15 MB को इनटू बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे. 15 MB इनटू बाइट्स. ओके, so you, okay, let's go for calculator because it will be difficult to use Google here at the moment. Okay, so we have around 15 MB into number of bytes will be 1024. Okay, so we have around 15,360 bytes and divide by 512 bytes, so we'll get the number of blocks. No, कुछ गड़बड़ हो गया. 1 MB is equal to 1024 bytes KB, and then it has to be, sorry 15 into 1024 into 1024. Okay, that is your number of bytes. Divide by 512 bytes, so that will be around 30720 blocks. Okay, now let's do that. So let's go here. How many we have? 30720. So we are going to use around 30720 blocks. Okay, so we are creating a device pd.img which is of 15 MB size approximately. Okay, हाँ, नहीं, एथिकल हैकिंग वाली डायरेक्टरी के अंदर हम एक और नई फाइल बना रहे हैं जिसका नाम है pd.img. ओके, और वो उसका जो साइज हम बनाने जा रहे हैं ये बनेगी फाइल. ठीक है, pd.img नाम की एक फाइल बनेगी और उसका साइज 15 बाइट्स होगा, बट वो अभी ब्लैंक होगी एट द मोमेंट. ओके, नाउ यू कैन सी दैट. तो वी हैव गॉट अराउंड 16 MB का हमारे पास एक कैलकुलेट होके बन गया. ठीक है, नाउ so now what I want to do, I want to mount this pd.img onto a directory known as pen drive और फिर उसके साथ में मैं डेटा एक्सचेंज करूँ. ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली डिवाइस के ऊपर मैं डेटा फिल नहीं कर सकता. I need to have the device mounted on a directory and then we can exchange our files with the directory. जब हम डायरेक्टरी से अनमाउंट करेंगे तो वो सारा का सारा डेटा डिवाइस के ऊपर स्टोर हो जाएगा. ठीक है, डिवाइस के ऊपर आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं डाल सकते. ठीक है, तो लेट्स डू दैट. सो नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये pd.img अभी इसका कोई फाइल सिस्टम नहीं है, तो वी हैव टू गिव अ फाइल सिस्टम. ओके, तो वी आर गोइंग टू गिव अ फैट फाइल सिस्टम. लेट्स से mkfs.ms-dos. okay, we are giving a FAT12 file system.
to this pd.img. Okay, so we have allotted a file system now. फाइल सिस्टम देने की वजह से क्या होता है, आप किसी भी डिवाइस इमेज को एक डायरेक्टरी के ऊपर माउंट कर सकते हैं. ठीक है, अगर डिवाइस के ऊपर फाइल सिस्टम नहीं होगा तो डायरेक्टरी को, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता ही नहीं चलेगा कि इस डिवाइस को मुझे डायरेक्टरी के ऊपर माउंट करना कैसे है. ठीक है, हेंस यू नीड टू हैव अ फाइल सिस्टम ऑन योर डिवाइस इमेज. कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई पेन ड्राइव्स कनेक्ट करते हैं बट वो कनेक्ट नहीं हो पाती. क्यों? क्योंकि उनके अंदर फाइल सिस्टम नहीं होता, या वो फाइल सिस्टम होता है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट नहीं करता. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं. आप एक पेन ड्राइव को ext4 पार्टीशन से फॉर्मेट कर दीजिए. ext4, ठीक है, ये लिनक्स का फाइल सिस्टम होता है. जैसा आपके विंडोज में NTFS होता है. यस, NTFS का तो लिनक्स पे सपोर्ट है, बट ext4 का विंडोज के ऊपर सपोर्ट नहीं है. ठीक है, क्लियर? तो मान लीजिए मैंने ext4 किया, पेन ड्राइव लगा दी विंडोज पे, तो पेन ड्राइव ओपन ही नहीं होगी. ठीक है, वो माउंट ही नहीं होंगे पार्टीशंस जो ext4 फॉर्मेट के. ठीक है, लेकिन अगर वही सेम फॉर्मेट NTFS का या FAT का फॉर्मेट हो, तब मैं अगर उसे विंडोज में कनेक्ट करूंगा तो माउंट हो जाएगा. ठीक है, सो इन द सेम वे अभी हमने FAT32 के बेसिस के ऊपर माउंट किया. ओके, नाउ विद इन हियर वी आर गोइंग टू मेक अ रैंडम डायरेक्टरी, लेट्स से पेन ड्राइव, जिसके साथ में हम डिवाइस का डेटा एक्सचेंज करवाएंगे. ठीक है, तो हमने एक डायरेक्टरी बनवा दी पेन ड्राइव नाम की. ओके, इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ डेट, सो दैट आप लोग देखते जाएं. असेंडिंग. Okay, let's say in this way. So we have got a pen drive and we have got pd.img. At the moment pen drive does not have anything. Okay, I'm going to mount my pd.img on this pen drive. Okay, to do this, mount -o loop. Since this is a virtual device, pd.img is not a real block device, it's a virtual device, so we are going to mount it as a loop device. Okay, loop stands for virtual, on the directory pen drive. Okay, so we did the mount. Okay, अब जो भी डेटा हम पेन ड्राइव के अंदर डालेंगे डायरेक्टरी के अंदर, वो कहाँ आ जाएगा आपके पास? वो आपके पास आएगा pd.img के अंदर स्टोर होता चला जाएगा. ठीक है, चलिए, तो अब मैंने क्या किया, लेट्स से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ. लेट्स से मैंने एक फाइल कॉपी करी day5.txt इनटू पेन ड्राइव. कॉपी कर दी एक फाइल day5.txt नाम की. एक इमेज में कॉपी कर रहा हूँ day3_notes.png इनटू पेन ड्राइव. ओके, एक ऑडियो फाइल कॉपी कर रहा हूँ audio.mp3 फाइल इनटू माय पेन ड्राइव. ओके, क्लियर? नाउ अब अगर मैं डिवाइस को चेक करूं df-h, so you can see that we have a device, loop1 device mounted in root ethical pen drive directory. ठीक है, जो टोटल 15.5 MB की है, जिसमें से 8.2 MB यूज हो चुका है और 6.8 MB अभी खाली है. क्लियर? ये 6.8 MB क्यों है? क्योंकि मैंने कुछ इमेजेस और कुछ फोटोग्राफ्स, ऑडियो, टेक्स्ट फाइल्स मैंने इसके अंदर कॉपी कर दिया. ठीक है, नाउ व्हाट एम आई गोइंग टू डू? आई एम गोइंग टू unmount my pen drive or pd.img so that the unmount process is done, और जो भी डेटा हमने पेन ड्राइव में कॉपी किया है वो आपकी pd.img के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम फ्लैश करे. ठीक है, नाउ लेट्स से, so we can do umount pd.img. oh sorry, we have to give the name of the directory, that is pen drive. पेन ड्राइव हमने unmount कर दी. ठीक है, now after unmount if I go for df-h and if we check the file format system, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे और कोई लूप डिवाइस नहीं है. क्लियर? Is that clear? Now in case, so now what we have done is, let's say we had some device, पेन ड्राइव भी अब खाली हो गई आपकी. ठीक है, और pd.img है, वो टोटल साइज कितना है? 15 MB है, लेकिन इसके अंदर कितना साइज का डेटा है? अराउंड 6.8 MB डेटा है इसके अंदर.
ठीक है, इज दैट क्लियर? नाउ दिस pd.img कंटेन्स सम डेटा, ओके, और इसके अंदर से हमें डेटा एक्सट्रैक्ट करना है सबसे पहले, ठीक है, तो इसको हम ले जाएंगे एनालिसिस करने के लिए, क्लियर? लेट्स से मान लो मैंने यहाँ से इस pd.img को एक्सट्रैक्ट कर लिया, कट कर लिया, और मैंने लेट्स से एक नई डायरेक्टरी बना ली, लेट्स से नेम ऑफ द न्यू डायरेक्टरी विल बी एनालिसिस, ओके, एनालिसिस के अंदर मैंने ये pd.img स्टोर कर दिया, क्लियर? pd.img समझ में आ रहा है? डेटा हमारी अब इस पेन ड्राइव के अंदर है। अब ये समझ लो आपके पास एक डिवाइस की, आपके पास एक हेक्स इमेज तैयार हो, ठीक है, पेन ड्राइव की ओरिजिनल इमेज आपके पास में है जिसको आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। आई एम गोइंग टू ओपन दिस इमेज इनटू विथ WinHex एडिटर, WinHex से मैं इसे ओपन करूंगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, आई हैव माई WinHex प्रोग्राम हियर, ओके, आई एम गोइंग टू ओपन अ न्यू केस, ओके, लेट्स से मैं एक फॉरेंसिक्स का नया केस बना रहा हूं, ओके, सो लेट्स से न्यू केस विल बी माय पीडी केस, या चलो हम ऋषभ केस ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। कोई एक केस हुआ जिसमें कोई फोर्जरी हुई, हमने एक डेटा डायरेक्टरी हमें मिली, एक पेन ड्राइव मिली जिसको हमने एविडेंस मान लिया। अब इस एविडेंस की हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। एविडेंस की एनालिसिस जो हम करेंगे वो कौन सी डायरेक्टरी में स्टोर होगी? सी यूजर्स दिवांशु के अंदर। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू इज आई कैन चेंज द डायरेक्टरी टू माय एनालिसिस डायरेक्टरी, ओके, क्योंकि मैंने अभी एक एनालिसिस नाम की डायरेक्टरी बनाई है जिसके अंदर मैं इसको स्टोर करूंगा, जो भी एनालिसिस में करूंगा, ओके। सो RI ऋषभ डेटा केस, इट कुड बी एनीथिंग, एग्जामिनर इज लेट्स से दिवांशु शुक्ला from Hackweather, Delhi. There could be many examiners, okay. So then you have some more information which you can understand with your user manual, okay. Let's say we clicked on OK, and now we have got the Rishabh case ready on my forensics machine, okay, clear? And I will be analyzing the evidences. So I'll go to the case root directory and I have to open a new file here, okay. So what we can do, we can directly drag and drop the file. तो मैंने pd.img को यहाँ से ड्रैग किया, वी कैन गो टू हेक्स एडिटर एंड वी कैन ड्रॉप द फाइल हियर, ओके। फाइल ड्रॉप करने के बाद में इट विल बी ओपनड हियर, अभी ओपन हो गया आपके सामने। In case if you find any difficulty, you can directly go to open, you can go to your directory from where you have the evidence available, and I am going to take my pd.img from here, okay, ठीक है। So now let's say I have got this file opened, okay. So this file is known as pd.img from the directory C analysis. File size is 15 MB, okay. The file has created at some time, then you have some hexadecimal information about it, and then you have the temporary information around some 861 MB is totally free in the temporary folder, ठीक है, for analysis. Now let's see. So if we go a little down here, you can see that there is some data in the file here. ये जो आपकी 15 MB है, नीचे खाली है, ऊपर इसके अंदर कुछ डेटा भरा हुआ है, ओके, क्लियर? Now what next we do, we can search for file signatures, okay, on your hex. जितने भी फाइल्स होते हैं उन सबके signatures होते हैं, okay, and there is a good resource here, file signatures, okay. This is the website garykessler.net which maintains multiple file signatures, okay. So you can go to this URL on file signatures, और यहाँ पे आपको बहुत सारी images के, बहुत सारे फाइल फॉर्मेट्स के signatures मिल जाएंगे, ठीक है। आप देखिए, जैसे लेट्स से यहाँ पे आपके पास ASCII signatures information है और लेफ्ट साइड में उसकी ASCII bytes हैं, क्लियर। लेट्स से हमारे पास 3 फाइल्स हैं, PNG, MP3 एंड TXT, ठीक है। लेट्स से मान लो मैंने सबसे पहले सर्च किया फॉर MP3 फाइल, तो लेट्स से मेरे पास एक
MP3 का सिग्नेचर है 494433। ओके, मैं इसको सर्च करके देखता हूँ। देयर कुड बी मल्टीपल MP3 एक्सटेंशंस अवेलेबल, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक है, यानी इस पेज पे 4 MP3 के डिफरेंट एक्सटेंशंस हैं। तो लेट्स जस्ट ट्राई दैट आउट कि कौन सी MP3 टाइप की फाइल है यहाँ पे। तो वी कैन सिंपली क्लिक ऑन Control F। ओके, we can specify the string which we want to search, we can match the case with ASCII or Unicode, and we can simply list the search up to maximum number of counts कि कितने identified instances हो सकते हैं। तो मैंने लिस्ट किया, this was not found, यानी ये सिग्नेचर MP3 का नहीं है मेरी इस हेक्स के अंदर। मैंने दूसरा सर्च किया, ओके, there is another that kind of, and there is one more MPEG, MPG, MP3, okay, FF, FX. Let me just try that out. Okay, Control F किया हमने, सर्च किया, ये भी नहीं मिला। तो दोनों सिग्नेचर ट्राई किया बट मेरे को ये MP3 एक्सटेंशन नहीं मिला। तो दैट मीन्स देयर कुड बी सम इशू। तीसरा चेक कर लेते हैं, MPG, MP3 मान लो मेरे को नहीं मिला, कोई बात नहीं। लेट्स जस्ट ट्राई दैट विद TXT। ओके, यहाँ पे TXT के लिए नहीं है, एक और है हमारे पास PNG। ठीक है, लेट्स से PNG का एक ये ASCII एक्सटेंशन है। लेट्स जस्ट सर्च फॉर इट, Control F। ओके, ये भी नहीं मिला। चलो भाई एक मिनट चेक करना पड़ेगा, सर्च में शायद कुछ हम गड़बड़ कर रहे हैं। फाइंड हेक्स वैल्यूज होना चाहिए, गलती से मैं टेक्स्ट सर्च कर रहा था। ठीक है, वी हैव टू गो फॉर सर्चिंग फॉर द हेक्स वैल्यूज। ओके, यू एंटर, सॉरी स्पेस, लेट्स से okay, let's just search that। तो we have got one hit। okay, तो एक तो हमें मिल गया, PNG कहाँ है, इस लोकेशन पे है। okay, डबल क्लिक करते हैं हम, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके फाइल फॉरेंसिक्स में यहाँ से आपकी PNG इमेज स्टार्टेड है। ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रेल। तो अगर सिर्फ आप इतना ही डेटा कॉपी करके इसे रीजनरेट करेंगे आप टिल द एंड टैग ऑफ द PNG, आपके लिए ये वाली इमेज फाइल जनरेट हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका स्टार्टिंग का टैग हो गया। लेट्स से अगर आप इसका ट्रेलर देखेंगे तो ट्रेलर ये है, एंड। ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से आपके पास यहाँ पे ऑफसेट है 51712। ठीक है, आप यहाँ से इसको कॉपी करना शुरू कर सकते हैं, आप इसे नोट भी कर सकते हैं कि आपको कहाँ तक करना है। कंट्रोल सर्च करते हैं हम दोबारा, Control Alt X ट्राई करते हैं। ओके, लेट्स से वी आर ट्राइंग फॉर द ट्रेलर। ओके, ठीक है, तो वी हैव गॉट वन आइटम एंड दैट इज द एंड। ये है आपका एंड, तो ये है आपका IENDB। तो यहां तक आपका क्या है, इमेज है। ठीक है, यानी 2F2B0 से CA00 तक जो आपका डेटा है वो एक PNG इमेज है। ठीक है, तो लेट्स से मैंने इसको अभी सेलेक्ट किया, जो भी हमारी PNG इमेज है। अभी ये काम मैं मैनुअली कर रहा हूँ, इसका हेक्स डेटा मैं चेक कर रहा हूँ कि इमेज एक्चुअली हमारी डिस्क में कैसे स्टोर्ड है, इस फॉर्मेट पे स्टोर्ड है। क्लियर, आप देखिए। चलिए, वी कैन गो टू दैट ऑफसेट। ओके, तो ऑफसेट जितना भी हैं आपके, उनको आप सेलेक्ट करके आप उनको रीजेनरेट कर सकते हैं। यू कैन राइट क्लिक, कॉपी एंड सेव इट एज अनदर फाइल, और उसके बाद में आप उसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। सो वी वर अराउंड CA00 तक हमें जाना है। ओके, हियर, यहाँ तक आपके पास आपकी PNG का ट्रेलर है। ठीक है, ये आपने कॉपी कर लिया, राइट क्लिक कर लीजिए, एक एंड ऑफ ब्लॉक, एडिट पोजीशन, एडिट,
we just need to copy that. एक मिनट, we'll just see. एक मिनट, चलो अभी मैं एक बार देखता हूँ इसको. ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, बिगिनिंग ऑफ द ब्लॉक एंड एंडिंग ऑफ द ब्लॉक तो इस ठीक है, बट वी नीड टू, ठीक है. एडिट पे आपको जाना है. एडिट पे जाके यू कैन कॉपी द ब्लॉक. ओके, ब्लॉक आप कॉपी कर सकते हैं. यू कैन कॉपी द हेक्स वैल्यूज, ठीक है, और इसको आप हेक्स के फॉर्मेट में स्टोर करके आगे रीजनरेट कर सकते हैं हेक्स टू बिन से. देयर इज अ प्रोग्राम नोन एज हेक्स टू बिन जिसके थ्रू आप इसे जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स से हमने हेक्स वैल्यूज कॉपी कर लिए, जो भी आपके सेलेक्टेड हेक्स वैल्यूज हैं, और आप इसको एक दूसरी फाइल के अंदर एज अ हेक्स फाइल आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं. ठीक है, ये आ गया आपके पास हेक्स का डेटा जो भी आपने कॉपी किया है. क्लियर? इसको आप सेव एज, वी कैन गो टू अवर एनालिसिस डायरेक्टरी. ठीक है, ये तो हो गया मैनुअल जनरेशन, ऑल फाइल्स, एंड लेट्स से दिस इज माय test1.png. test1.png के नाम से मैंने इसको स्टोर कर लिया अभी. ठीक है, डॉट हेक्स है एक्चुअली. हेक्स को बिन से हम जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर? देयर इज अ प्रोग्राम नोन एज हेक्स टू बिन. यूजिंग हेक्स टू बिन वी कैन रीजेनरेट फाइल्स. ओके, क्लियर? अब देखिए, रीजेनरेट एक एक करना वुड बी वेरी डिफिकल्ट. ओके, क्योंकि MP3 हैं, ऐसे एक एक ब्लॉक को सर्च करना, एक एक ब्लॉक को इतनी बड़ी पूरी मेमोरी में ढूंढना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट. तो WinHex offers you one tool here using which you can automatically generate all the identified elements. Okay, so here what you can do is you can go to tools. Okay, you can go to disk tools and you can go to the option file recovery by type here. Okay, you can go to file recovery by type, click on OK, and here what you can do is you can select the set of files which you want to, which you think कि इसके अंदर अवेलेबल हो सकती हैं. अगर आपको पता नहीं है तो आप सारे के सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे पिक्चर्स के लिए कौन कौन से फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं. ये सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं जो कि सर्च किए जाएंगे आपकी इस मेमोरी के अंदर जो भी आपके पास फॉरेंसिक इमेज है, एंड देन दे विल बी ट्राइड टू बी जनरेटेड. तो ऋषभ केस के अंदर अब हम यहाँ पे इसको जनरेट करेंगे. एंड लेट्स से ऋषभ केस के लिए मैंने एक इनिशियल दे दिया आरसी के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 करके फाइल्स रीजनरेट होती जाएंगी. ओरिजिनल फाइल नेम्स क्या है, दैट इज नॉट गारंटी कि आपको वही फाइल नेम्स मिलेंगे. फाइल नाम कुछ भी हो सकते हैं, बट डेटा यू कैन आइडेंटिफाई. ओके, सो लेट्स से मैंने ओके किया and I have started the compilation and signatures process. We see that here we have got 2 file headers were found and 1 files were retrieved. ठीक है, तो किसी किसी केस में TXT signatures जो होते हैं वो नहीं मिलते हैं. 2 headers हमें यहाँ पे मिले हैं. कौन कौन से headers हैं वो अभी हम ऋषभ केस में जाके देखते हैं. तो within the temporary information we have got a file recovery and some image information. ठीक है, तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इतना मैंने शायद सेलेक्ट कर रखा है, इस वजह से उतना ही सेलेक्ट हुआ और ये वाली इमेज हमारी जनरेट हो गई ऑटोमेटिकली. ठीक है, नाउ व्हाट आई कैन डू इज लेट्स से WinHex में से जाके मैंने इसको इग्नोर कर दिया. लेट्स से इसको भी डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर दिया. PD इमेज को मैंने दोबारा ओपन किया. ओके, unable to release memory. अच्छा, ओके, ठीक है. नाउ we will be searching again. Let's go to tools, go to file recovery by type. Let's go OK. Click on OK. And now let's say we will be searching for
द डोमेन्स हियर। तो ये कह रहा है आई श्योर यू वांट टू ओवरराइट दिस, लेट्स से आई वुड लाइक टू ओवरराइट, यस। सो समहाउ पीएनजी फाइल से अभी रीजनरेट हो रही है, MP3 एक्यूरेटली आइडेंटिफाइड नहीं है और TXT फाइल भी एट द मोमेंट इट इज नॉट एक्चुअली आइडेंटिफाइड FAT16 फाइल सिस्टम के अंदर, बट जो आइडेंटिफाई हुई वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई, ठीक है। अब देखते हैं हम इसे, क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ रिलीज मेमोरी का इशू आ रहा है, वो हम चेक करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर में क्यों है, वी कैन सी दैट। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ थिंग्स आर बीइंग डन। तो जो भी एक आपकी RC फाइल बनी वो आपके पास यहाँ पे रीजनरेट हो गई आपके केस के अंदर, और यहाँ पे आपके पास कुछ हेडर इंफॉर्मेशन हैं जो कि चेक हुए और आइडेंटिफाई हुए, ठीक है। इनकेस अगर आपको लगता है कि जो आपकी pd.img के अंदर जो हेडर्स नहीं आइडेंटिफाई हुए, ठीक है, तो यू कैन मेंटेन अ न्यू लिस्ट ऑफ हेडर्स जिसके थ्रू आप इसको अपडेट कर सकते हैं और फिर आप उसे रीजनरेट कर सकते हैं। हाँ, वो रीजनरेट नहीं हुई ये वाली फाइल, ठीक है। ये तो आपको लाइसेंस रजिस्टर करना पड़ेगा इसका, इट इज नॉट पेड बट इट विल बी डन। और TXT का जो एक्सटेंशन है वो अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। TXT के मल्टीपल एक्सटेंशंस होते हैं। सो नाउ द थिंग इज, एक तो आपका ये स्पेसिफिक ब्लॉक था, दूसरा आपका 2FA00 से यहाँ तक का आपका एक दूसरा ब्लॉक है, ठीक है। दो फाइल हेडर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, MP3 एंड PNG, और एक फाइल उसमें से रिट्रीव हो पाई, ठीक है। आप अपने वर्जन को रजिस्टर कर दीजिए, आपकी ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 200 KB वाली, वो तो हमें स्टार्टिंग में ही वार्निंग दे रहा था कि 200 KB से ज़्यादा अगर फाइल होगी तो वो सेव नहीं होगी, आप सिर्फ उसको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। सो ओनली TXT फाइल्स आर नॉट रिकवर्ड, उसका क्योंकि इंडिविजुअल एक्सटेंशन है। नोटपैड की TXT का अलग एक्सटेंशन हो सकता है, विंडोज़ की TXT का अलग एक्सटेंशन हो सकता है। तो उस TXT फाइल के लिए आपको मैक्सिमम जितने भी TXT के एक्सटेंशन है वो आपको सर्च करके इंटीग्रेट करने पड़ेंगे, देन इट कुड बी आइडेंटिफाइड। ओके, इज दैट क्लियर? सो नाउ आई गेस यू अंडरस्टूड कि रीजनरेशन कैसे होता है डेटा का, ठीक है, क्लियर हो गया? तो जो भी आपकी हार्ड डिस्क है या कोई भी डिवाइसेज है, आपका एप्पल आईपैड है, आपका फोन है, आपका स्टोरेज है, कंप्यूटर है, सबके अंदर डेटा हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पे स्टोर्ड है, ठीक है। हर फाइल के इंडिविजुअल सिग्नेचर होते हैं, उसका एक स्टार्टिंग ब्लॉक होता है, एक एंडिंग ब्लॉक होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग ब्लॉक के लिए स्टार्टिंग का हेक्स आइडेंटिफायर होता है, सिग्नेचर, और एंडिंग के लिए ट्रेलर होता है, ठीक है। उन दोनों के बीच के डेटा को आप रीजेनरेट कर सकते हैं, ठीक है। रीजेनरेट करने के लिए हमारे पास एक विनहेक्स करके टूल है। अब कभी ऐसा होता है कि आपके हार्ड डिस्क में से कोई फाइल आउट हो गई या डिलीट हो गई, अब आपको रिकवर करना है, आप परेशान घूम रहे हो कि यार डेटा कहाँ से रिकवर होगा, तो आप ऐसे टूल्स के थ्रू डेटा को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेट्स से मान लो हमने रिवर्स शेल किसी का गेन किया, ठीक है। अब हम उसका पूरा का पूरा मशीन एनालाइज करना चाहते थे कि उसकी कौन सी डायरेक्टरी के अंदर क्या फाइल्स हैं, क्या चीज़ें, एक एक स्क्रॉल करना, हिडन फाइल्स को ढूंढना वुड बी वेरी डिफिकल्ट, ओके। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम उसकी हार्ड डिस्क का एक ड्राइव्स का एक इमेज बनाते हैं, ठीक है। वो इमेज पहले हम उसके कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं और उसके बाद में फिर हम उसकी एनालिसिस शुरू करते हैं कि इसके कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कल को आप किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को मॉनिटर करें, आपने उस टेररिस्ट की या कोई भी एक्स इंडिविजुअल की आपने मशीन कॉम्प्रोमाइज कर ली, ठीक है, आपके पास उसका शेल आ गया। अब उसका शेल हमेशा आपको मिलता रहेगा ये ज़रूरी नहीं है, तो जितनी देर के लिए भी आपको उसका शेल मिला है, आप उसकी डिवाइस का डंप लेंगे और उस डंप को डाउनलोड करेंगे और फिर बाद में आप उसको एनालाइज करेंगे कि इसके कंप्यूटर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इसलिए डिवाइस फॉरेंसिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात क्या है, डिवाइस फॉरेंसिक्स से आपके पास सामने वाले कंप्यूटर की एक पूरी इमेज जनरेट हो जाती है, ठीक है। दिस यू कैन डू ऑन मोबाइल डिवाइसेज एज वेल, ओके। मोबाइल फ़ोन का अगर आपको शेल मिल गया, आप उसके मोबाइल फ़ोन का डंप ले सकते हैं, वो डंप लेने के बाद में आप उसको हेक्स एडिटर्स के थ्रू एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर, समझ में आई ये बात? नाउ लेट्स सी। इट कुड बी, इट डिपेंड्स ऑन द जीबी ऑफ द फोन, कि फोन के अंदर कितनी मेमोरी है, या आप कंप्यूटर का, अगर मान लो मेरी हार्ड डिस्क है 2 TB की है और आप पूरी हार्ड डिस्क का अगर बैकअप ले रहे हो
तो फिर आप 2 TB का बैकअप लोगे तो वो 2 TB की बनेगी। हाँ, अगर आप एक डायरेक्टरी का ले रहे हो सिर्फ बैकअप तो आप एक डायरेक्टरी का ले सकते हो। जितना साइज होगा डिस्क का उतनी साइज की डंप फाइल बनेगी। ठीक है, क्लियर, समझ गए? नाउ इज दैट क्लियर? इन द सेम वे जैसे आपने ये डिस्क का डंप लिया उसी तरीके से आप रैम का भी डंप ले सकते हैं। ठीक है, रैम के अंदर सिक्योरिटी कीज, SSL कीज ये सब स्टोर्ड होती हैं। अगर आपको वो मिल जाती हैं तो आप किसी भी वेबसाइट जो भी वो यूजर एक्सेस कर रहा था उसके एक्सेस क्रेडेंशियल्स आप वो सब मेमोरी एनालिसिस के थ्रू फेच कर सकते हैं। ठीक है, फेसबुक के चैट मैसेजेस, फेसबुक के इंपॉर्टेंट कन्वर्जेशंस आप सारी की सारी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रियल टाइम पे रैम के अंदर ही होती है। और अगर आपने रैम डंप ले लिया तो रैम ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, वो 4 GB, 8 GB, 12 GB मैक्सिमम। जनरल मशीन्स में 4 GB होती है। तो TB ज़्यादा हो सकती है, इट कुड बी 250 TB, बट पोटेंशियल इन्फॉर्मेशन कुड बी ऑन रैम, आप वो रैम से इन्फॉर्मेशन फेच कर सकते हैं। ठीक है, तो रैम 4 GB की होगी। अगर आपके पास एक अच्छा कनेक्शन है जैसे जियो वगैरह तो डाउनलोड करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि वो MB/s के बेसिस के ऊपर स्पीड आती है। यू कैन क्विकली डाउनलोड इट एंड देन यू कैन एनालाइज विक्टिम्स रैम ऑन योर मशीन। ओके, क्लियर? तो मेमोरी फॉरेंसिक्स वो है जो एविडेंस एनालिसिस के लिए लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज लाइक एथिकल हैकिंग इनटू अ मशीन। आप किसी भी एक मशीन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उसका डंप लेते हैं एंड एज एन एविडेंस फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डेटा स्टोर्ड था। ठीक है, क्लियर? उसके बेसिस के फिर ऊपर आप आपका केस रीजनरेट कर सकते हैं। क्लियर, समझ गए बात?